अखिल अकिनेनी, दो बहुत ही काबिल बैट्समैन। अश्विन बाबू को पिछले सीजन भी हमने देखा था लगातार ओपन करते हुए और तेज गति के साथ बैटिंग करते हुए। लेकिन भूल नहीं सकते तमन के रूप में भी एक बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर तेलुगु वॉरियर्स के पास मौजूद है। How about that? Viciously coming into the right-hander. हर एक बॉल एक्शन है शिवस्वामी स्टेडियम में। अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम हो तो हर एक बॉल का रिएक्शन तैयार होता है ऑडियंस के पास। और ये इनसाइड मूवमेंट जो हमने आदि को भी मिलता हुआ देखा था जब तेलुगु वॉरियर्स की बॉलिंग चल रही थी, वो असिस्टेंस यहाँ पर जेके को भी मिलता हुआ। जयराम कार्तिक एक बार फिर से तैयार अपने मार्क पर। शॉट उठाकर खेला हुआ, 4 रन्स मिलते हुए अखिल अकिनेनी ने अपने इरादे साफ कर दिए। All he needed was one-sighter. That was also swinging into the right-hander, but boy did he give that all. Lots of width on offer that allowed him to really sway his arms, and he got plenty of contact, a boundary to get him going. और यही चाहिए तेलुगु वॉरियर्स को, ऐसी ही शुरुआत चाहिए अगर उस पहाड़ को चढ़ना है तो। केनी कर्नाटका बुलडोजर्स की ओनर, और एक बार फिर से इनसाइड मूवमेंट, काफी ज्यादा इस बार तो। He's got decent pace as well. Pace and some movement in the air. But he's giving width on offer, and that's what I think Akhil Akineni would like. The owner of the Karnataka Bulldozers in the center of your screen in the jersey. He gives that a good swing. Didn't really make great contact. Opportunity for a run out. He was certainly gone for all money had that hit. तेज मुस्तैदी यहाँ पर, अच्छी बॉडी लैंग्वेज कर्नाटका बुलडोजर्स की ओर से दिखते हुए। गैप ढूंढना चाह रहे थे इस मौके पर, डायरेक्ट हिट से मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अच्छा कलेक्शन यहाँ के जसदीप की ओर से भी। काफी डिस्टेंस कवर किया उन्होंने स्टंप के नजदीक आते तक। लेकिन अब अश्विन बाबू स्ट्राइक पर, एक और बहुत ही काबिल, बहुत ही कुशल बैट्समैन। और किचा सुदीप हर बॉल के बाद कोई ना कोई स्ट्रैटेजी इनकी बनती है। First opportunity for Ashwin Babu. Smart, very nicely done. Intelligent from Ashwin Babu to get off the mark. Wants to make sure he gets a good sense of what the surface has to offer. Will just guide that to short third to pick up a single. Great game, this. Two popular sides that pull a lot of crowd, and fitting opening to another season of the CCL. स्विंग एंड अ मिस। अखिल अकिनेनी डॉट बॉल के साथ अंत करते हुए कार्तिक का ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर के बाद 6 बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर्स। अश्विन बाबू एक बार फिर तैयार। वो अलग सा एक्शन है, लेकिन यहां पर मिड ऑफ को बीट करते हुए 4 रन मिलते हुए अश्विन को। My goodness, he hit that so well. The sound of the bat, it was absolutely crisp. Ashwin Babu smoked that past mid-off. He didn't have to move too much to his left, but it was just the speed at which the ball sped past. There was no chance for him to stop that. Into double digits now, the Telugu Warriors. Game on. This is a top game. Real talent on display with these two teams. They play some proper cricket, all mind you, these actors. Oh, that was nippy. I think there was some bat involved, Savi. I heard two noises there. जहाँ शुरुआत में ही वो आवाज आ गई थी नवनीत, और इस वजह से यहाँ पर बच गए अश्विन बाबू। नहीं तो बहुत ही सटीक पिच इस बॉल की होते हुए
लाइन और लेग कमाल की, और वो इनसाइड मूवमेंट अभी भी मिल रहा है। अलग सा एक्शन लेकर आते हुए सुनील राव, ऐसा लग रहा है कि अनिल कुंबले फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। That's a good one. Yeah, he does have an unorthodox action. It'll skid off the surface with the slingy action that he does have. And so you want to be careful, particularly if you're playing with a horizontal bat. If you play with a straighter bat, the chances are you'll make better contact. But he's a lot quicker than you think he is, Sunil. Now watch out if you're playing square of the wicket. The safer option to do is to play down the track. And Ashwin Babu does exactly that. Good effort by mid-off, but it needed some support from his mate. जहां उस एफर्ट की वजह से 4 रन यहां पर नहीं आ पाए, 2 बहुत इंपॉर्टेंट रन बचाते हुए वहां मिड ऑफ के खिलाड़ी। एक बार फिर से फुल ये गेंद थी, डाइव करते हुए, स्ट्रेच करते हुए बॉल के साथ संपर्क किया, पेस को कम किया और चांस दिया लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को कि यहां पर 2 रन बच जाए। लेकिन अच्छी शुरुआत अश्विन बाबू की ओर से भी। अब 9 बॉल में 12 रन बन चुके हैं। मुस्कान है यहां कर्नाटका बुलडोजर्स के कैंप में, लेकिन अखिल और अश्विन उसे छीनने के लिए बेताब रहेंगे। So wonderful to have all the stars here in attendance. It's not just the ones that are playing on the field, in the dugout. Plenty of familiar faces. He's just enjoying the fact that it's coming fuller. He's having to squeeze them out, but he's making great contact, Ashwin Babu. और यही किया था पिछले मैच में राहुल मजुमदार ने। लगातार इस तरीके से स्पेस को किल करते हुए उन्होंने मौके नहीं दिए। सुनील राव ने अच्छी शुरुआत दिलाई है। पिछले सीजन हमने इन्हें देखा था मिडिल ओवर्स में इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन इस बार शुरुआत करते हुए इस मैच में पेस ऑफ रणनीति है। शॉट है ये मिड विकेट के ऊपर से, रेस जरूर लेकिन बॉल की जीत। 4 रन और अखिल अकनेनी के बल्ले से आते हुए। You see how he manufactured that? Took a step towards the offside, getting inside the line of the ball, and he picked that up. He would have been a dead duck if he missed that. Would have been a great candidate for an LBW, but he made even better contact. And he went over the inner circle, was always going to win that race. Smart batting from the skipper. And Telugu Warriors just right on course here in the chase as well. अपने लेंथ को पुल किया इस बार सुनील राव ने। अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल जाएगा अखिल को। 2 ओवर के बाद 18 बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर्स। Trying to hit the ball a little too hard, careful. Well, Ashwin Babu thankfully made the turn back at the right time. There was no run there. चेक करते हुए अपने बैट्स को, क्योंकि उनके हिसाब से ये बॉल और तेजी से जानी चाहिए थी। संपर्क अच्छा था, लेकिन फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी। ओह, बेहतरीन बॉल बाहरी किनारे की बेहद करीब थी, और कार्तिक तुरंत ही यहां पर बॉल मांगकर वापस अपने रनअप की ओर जाते हुए शायद थोड़े से चोटिल हुए यहां पर किच्चा सुदीप। Probably wasn't expecting the batter to miss that, but I wonder if it caught the tip of the finger, Savi. Now that can be a little nasty as a keeper.
if it catches the tip of the finger. He's actually attending to the center of the palm, so I'm not too sure if it is the tip of the finger. It just seems to be in a little bit of pain. Oh. That is a thick outside edge that will run away to the boundary. अखिल अकीनेनी, खिशा सुदीप के बाद अगर कोई एक खिलाड़ी है जिनके लिए यहाँ पर मौजूद जनता अपने कदमों पर आ जाए तो वो है तेलुगु वॉरियर्स के कैप्टन। इवन बैटल बनाते हुए इस मैच को अच्छी शुरुआत दिलाते हुए पावर प्ले में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठा रहे कप्तान। लॉफ्ट किया थर्ड मैन के ऊपर से, शॉर्ट थर्ड मैन वहां पर मौजूद जरूर, लेकिन तेलुगु वॉरियर्स के फैंस के चेहरों पर अब आ चुकी है मुस्कान। आखिरी 3 बॉल्स पावर प्ले के और अखिल अकीनेनी और अश्विन अच्छी शुरुआत दिलाते हुए। Was there something? Oh, for a split second I thought I heard something. But an excellent comeback from Karthik Jairam. जो पेस जनरेट कर रहे हैं कार्तिक जयराम, जरूर जिम में जो इन्होंने डंबल्स उठाए उसका फायदा यहाँ पर क्रिकेटिंग ग्राउंड पर दिख रहा है। Look at those arms, Savi. He's a big man. He's got the big guns, Karthik Jairam. He's a strong unit. अच्छा कमबैक उस बाउंड्री के बाद। अखिल अकीनेनी अभी भी तैयार, शॉट पुल किया हुआ, ये शॉट डीप में फील्डर कोई मौजूद नहीं, एक बाउंस 4 रन। अखिल अकीनेनी यहां पर तेलुगु वॉरियर्स की ओर इस मैच को ले जाते हुए। They're really on to this chase, the Warriors. They haven't lost a single wicket. Akhil and Ashwin are playing some good shots. He almost didn't know where that went. He was looking behind the wicket. Instead, it just drops in front of the boundary line in the mid-wicket region. 2 boundaries in this over already. 1 lucky. This one earned every bit of that. और तुरंत ही कुछ बदलाव यहाँ पर करते हुए खिशा सुदीप खुश नहीं अपने फील्डर से। बाउंड्री राइडर यहाँ पर बदले गए हैं। हर एक मैच, जैसा कि मैंने कहा, कर्नाटका बुलडोजर्स का हर एक मैच एक एक्शन होता है और हर उस काम को सही करने की एक रणनीति रहती है खिशा सुदीप की। आखिरी बॉल कार्तिक के स्पेल के। With the action that he has, he naturally has that movement off the air into the right-hander. 3 completed, 27 for no loss. अब अटैक पर आते हुए shot delivery, swats that much like a tennis shot with a horizontal bat. At the moment, probably safe to say that this game hangs in the balance right now. They haven't lost a wicket, the Warriors, but they'd like to up that run rate a little more. The Bulldozers ended their innings with some real momentum. It's what you want to see when 2 top teams are there. Savi, especially on a Saturday evening, you want to see a game go down to the wire. They last a little longer than average T20 games. That's one thing for sure in CCL. Oh, that's Darling Krishna. Is he jogging off? That's not a good sign. जी हाँ, एक बहुत दुखद समाचार ये हो सकता है कर्नाटका बुलडोजर्स के, लेकिन उम्मीद करेंगे कि छोटी सी निकल हो और बहुत जल्द आ जाए डार्लिंग कृष्णा वापस ग्राउंड के अंदर। बहरहाल मंजुनाथ गौड़ा, अश्विन को बेहतरीन शॉट, क्लेवर शॉट, दिशा दिखाते हुए थर्ड मैन की ओर। अश्विन बाबू ने बॉल की पेस का इस्तेमाल किया और मंजुनाथ के सामने उनका स्वागत किया। When you look at Ashwin Babu, you think he's someone who will butcher the ball. But that was all timing, Savi. Absolutely brilliant. He made contact at the right time and it raced away to find that gap between short third and a backward deep point. It takes some talent. And it was exactly that.
बाहर जाती हुई गेंद स्ट्रेच करके उसे खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड बॉल। एक परेशानी ये रही है दोनों ही टीमों के लिए, खासकर तेलुगु वॉरियर्स ने कई सारे रन्स वाइड के साथ कंसीड किए थे। अपने लेंथ को पुल किया इस बार जरूर, लेकिन लाइन थोड़ी सी भटकी हुई। पहला एक्स्ट्रा हालांकि इस चौथे ओवर में कर्नाटका बुलडोजर्स की बॉलर से आए हैं। तमन तैयार होते हुए, शक्तिशाली हिटर है तेलुगु वॉरियर्स के लिए और उतने ही एंटरटेनिंग म्यूजिक कंपोजर। Chance there, sharp catch, and the first wicket comes courtesy Manjunath. Well, for a second I thought he wasn't going to carry to long off, but Savi, a very sharp catch there. अश्विन बाबू खेलना चाहते थे इसे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन वो कनेक्शन पूरी तरह से जनरेट नहीं कर पाए और तुरंत रिएक्शन टाइम बहुत कम था और वहां ये कैच लिया गया। अश्विन बाबू के विकेट का पतन एक बार फिर से कर्नाटका बुलडोजर्स की ओर ये मैच पलट सकता है। पहले ओपनर अश्विन बाबू 12 रन बनाकर आउट, 33 पर 1 तेलुगु वॉरियर्स। और अचानक से मोमेंटम किस तरीके से शिफ्ट होता है ये यहां पर हम देख सकते हैं। नए बैट्समैन क्रीज पर, शुरुआत अच्छी दिलाई थी अखिल अकिनेनी और अश्विन ने, लेकिन उस विकेट से अब रनों की इस पेस को कम करते दिख सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स। किचा सुदीप नए बल्लेबाज के लिए कुछ बदलाव करते हुए फील्ड में अटैकिंग फील्ड लगाई गई है यहां पर आदर्श के लिए। Wow, he's hit that well, and he'll get 4. Just the second delivery for Adarsh. He had a bit of a sighter in the first. Wasn't messing around now. ये ऑफ साइड पर फील्डिंग की तैयारी की जा रही थी, लेकिन लेग साइड पर यहां पर फुल करते हुए आदर्श ने आसानी के साथ ये बाउंड्री अपने नाम पर कमाई है और तेलुगु वॉरियर्स की इस रनों की पेस को बिल्कुल भी थमने नहीं दिया। उस विकेट के बावजूद सेटल नहीं होने देते हुए मंजुनाथ गौड़ा को, जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी इस स्पेल की। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से, लेकिन एक विकेट भी मंजुनाथ गौड़ा के नाम। एक और बदलाव, तो लग रहा है कि मिड ऑन को अंदर लाकर अब एक और बाउंड्री राइडर लेग साइड पर तैनात किए जा रहे हैं आदर्श के लिए। मंजुनाथ पेस को कम किया, लेकिन एक रन फिर भी मिल जाएगा आदर्श को। 4 ओवर के बाद 38 पर 1 तेलुगु वॉरियर्स। अपने रनअप को बढ़ाया है सुनील राव ने इस सीजन। पिछले सीजन हमने एक स्पिनर के रूप में देखा था, हालांकि अपने मार्क को एक बार फिर से बदलते हुए। कर्नाटका बुलडोजर्स एक अच्छी स्थिति में, इसलिए फैंस के चेहरे पर अभी फिलहाल खुशी। और सुनील राव एक बार फिर तैयार। अच्छा मूवमेंट, अच्छी फील्डिंग, शार्प फील्डिंग, लेकिन एक रन फिर भी मिल जाएगा आदर्श को। अखिल आ चुके हैं स्ट्राइक पर अब। Hasn't had much of the strike over the last couple of overs or so, Akhil Akineni. Started with some real intent. Just gone a little quiet for Akhil and the Warriors. One thing they will be telling themselves, Savi, is that the Bulldozers started slow as well. But in the back half of that innings, Krishna Darling really pounded the Warriors. And so they will believe they can do that too. They've got plenty of wickets in hand. On the full. Will they come back for 2? They will. Oh, chance here. Very, very close indeed. In fact, it is so close
The umpire says I'm going to go upstairs. फील्डिंग टीम पर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश थी अपनी रनिंग के साथ बाउंड्री राइडर के ऊपर, लेकिन तरीके के अटेम्प्ट्स की वजह से ही फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। महफूज घर पर आसानी से पहुंच गए थे आदर्श। Should be a straightforward decision. It is. I'm going to move on. That's a good shot. But a fielder stationed for exactly that. But it's the longer part of the ground, and so they'll have enough time to come back for two. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अखिल और आदर्श अपने फिटनेस लेवल को यहाँ दिखाते हुए। 4 इनिंग्स का ये गेम है जहां लगातार अपने एनर्जी को कंजर्व करके रखना जरूरी, पर इंटरेस्टिंग फॉर्मेट जहां पर अपने बैटिंग क्रम को आप रिपीट नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते अपने अगले इनिंग में। सुनील राव, अच्छा स्पेल उनका, उठाकर खेला हुआ ये शॉट सीधे मौजूद लॉन्ग ऑफ के फील्डर के हाथ में, लेकिन कैच हुआ ड्रॉप। अटेम्प्ट बहुत अच्छा, 2 रन और मिल जाएंगे। एक पल के लिए यहां पर बेंगलुरु की जनता को लगा कि एक और सफलता मिल जाएगी। Was that Manjunath, the fielder at long off? Really good effort. Oh, I think he did well. It was at a comfortable height, Savi. He was running towards his left and he put that slide forward. Just got himself into a bit of an awkward position. He did the hard job well. Wasn't able to hold on. Would have been a big one. It was the wicket. It would have been the wicket of Akhil Akineni. Turning point, you would think, in this innings. Lovely, Sunil. अच्छा ओवर ये सुनील राव का, लेकिन अगर वो सफलता मिल जाती, अगर वो विकेट मिल जाता तो बहुत बड़ा इनाम होता कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, क्योंकि कैप्टन अखिल अकिनेनी एक अच्छे टच में, अच्छे निक पे दिखते हुए कितना महंगा साबित हो सकता है वो ड्रॉप कैच, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आदर्श आ चुके हैं स्ट्राइक पर। सुनील राव की स्पेल की आखिरी गेंद, अच्छी लाइन, अच्छा लेंथ, एक ही रन मिल पाएगा आदर्श को। 5 ओवर हो जाते हैं समाप्त इसके साथ। 47 पर 1 तेलुगु वॉरियर्स।